So what do you mean by pair of straight lines? Hello, Radha. You have studied this chapter for your board exam, okay? At least you need to answer something, right? What is pair of straight lines? Pair of straight lines. The lines. You have two lines, u, a1x plus b1y plus c1, and we are just multiplying those equations. That gives you a combined equation of the line. Okay? That you call it as pair of straight lines. ठीक है? समझ में आया ना? है कि नहीं? हाँ हाँ. So, for example, अब यहाँ पे सॉल्व एग्जांपल देखो यहाँ पे, ठीक है? ये x minus x plus y minus 2 is equal to 0. This is one line. 2x minus y plus 2 is equal to 0. This is another line. These both the lines are actually in 2D only. When you multiply them, you get a combined equation of the lines. ठीक है? इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए. ठीक है? हेलो? हाँ. Okay. So homogeneous equation, an equation in which the degree of every term is same, is called as a homogeneous equation. समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है. सो यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में होमोजेनियस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x की डिग्री 1 है, राइट? है कि नहीं? और फाई तो कांस्टेंट है, उसकी तो कोई डिग्री नहीं है. लेकिन हमको होमोजेनियस इक्वेशन तब मिलता है जब हमारे पास में ऐसा कोई इक्वेशन आता है, x² + 3xy = 0, है कि नहीं? यहाँ पे x की डिग्री 1 है, y की डिग्री 1 है, दोनों की डिग्री ऐड कर दिया तो 2 हो जाता है, राइट? और x की डिग्री ऑलरेडी 2 है मेरे पास में. सो दैट मींस इस टोटल इक्वेशन की डिग्री जो है वो 2 है, and it is definitely a homogeneous equation. ठीक है? समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ. So अब ये थ्योरम बोल रहा है कि the combined equation of a pair of lines passing through the origin is a homogeneous equation of degree 2 in x and y. इसमें प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है. Okay? And they have taken some ax² + 2hxy + by² = 0. ठीक है? This is the way in which they are denoting it, the homogeneous equation. ठीक है? We'll see a1 a2 is equal to a, b2 plus a2 b1 is equal to 2h, okay, and b1 b2 is equal to b. ऐसा उन्होंने लिया हुआ. Okay, we will see what is that in detail later. Okay. So अब theorem 3 क्या है? ये काफी important theorem है. Okay, the homogeneous equation of degree 2 in x and y, ax² + 2hxy + by² = 0, represents a pair of lines passing through the origin if h² minus ab is greater than equal to 0. Okay. So as we are studying pair of straight lines, let us say we have a1x plus b1y is equal to 0. This is one equation. And a2x plus b2y, this is another equation which is passing through the origin, right? ऐसा ही है ना? Both the equations should pass the origin. ठीक है? Should pass through the origin. तो मैं दोनों equations को multiply करता हूँ. ठीक है? Whole into a2x plus b2y. ठीक है? ऐसा किया और equal to 0 लिखा मैंने. ठीक है? So I will get a1 a2 x², ठीक है, plus a1 b2 xy plus b1 a2 xy plus b1 b2 y² = 0. ठीक है? यहाँ पे मैं y² लिखता हूँ. ठीक है? = 0. ठीक है? So they are saying that a1 a2 is equal to a, उन्होंने ऐसा लिखा है. ठीक है? b1 b2 is equal to some b. ठीक है? and a1 b2 plus b1 a2 is equal to some 2h, ऐसा उन्होंने लिखा है. ठीक है? समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐसा उन्होंने लिखा है. सो होमोजेनियस इक्वेशन का लाइन कैसा हो गया? ax² plus 2h xy plus b² by² is equal to 0. This is the equation of the homogeneous pair of homogeneous lines. ठीक है? And they're saying that this to be, अगर सपोज हमको ऐसा कोई इक्वेशन दिया गया, इस फॉर्म में दिया गया, and we have to find out whether it is a pair of homogeneous lines or not. So h² minus ab has to be greater than or equal to 0.
दिस इज द कंडीशन। अब ये कंडीशन कैसे प्रूव होता है? ओके सो अभी हमारे पास डायरेक्टली ये फॉर्मूला आ गया है, ठीक है, हमारे पास में डायरेक्टली ये फॉर्मूला आ गया है। ओके सो m1 इज इक्वल टू माइनस एच माइनस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी बाई बी, ठीक है, एंड m2 इज इक्वल टू माइनस एच प्लस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी बाई बी। व्हाट इज दिस m1 and m2 राधा? slope 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 of line. slope of the two lines, right? ओके Yes. तो उन्होंने ऐसे डिराइव करके ऐसा दे रखा है, ठीक है, हाँ समझ में? ठीक, सो इफ h square minus ab then line represented are distinct, okay, if h square is equal to ab then line represented are coincident, ठीक है, and h square minus ab is less than 0 तो क्या होगा? equation 1 does not represent a pair of lines, okay, समझ गया क्या बोल रहा है? हाँ फाइन, या so let us try to see ये जो है the sum of the slopes is what? m1 plus m2 is equal to minus 2h by b. The product is m1 m2 is equal to a by b. The slope of the two lines अगर हमने ऐड किया तो we'll get minus 2h by b and the product is equal to m1 m2 is equal to a by b. ठीक है, फाइन, हाँ हेलो, या हाँ चलो सो अब यहाँ पे लेट अस सी तुम्हारा जो क्वेश्चन तुमने दिया था मुझे, ठीक है, तुमने क्वेश्चन क्या दिया था? ऐसा दिया था इफ a plus 3b into 3a plus b is equal to 4h square, है कि नहीं? हाँ और यहाँ पे मैंने ए और ये एक सेम है ना, मैंने कैपिटल ए लिखा है, हाँ ये तो ये तुमको वैसे बताना चाहिए ना मुझे, दिस इज द सेम ए, ऐसा तुम कब बताओगे मुझे? कब बताओगे मुझे? हेलो, हाँ हेलो ऐसा ऐसा ही दिया है ना उन्होंने, है कि नहीं? हाँ करेक्ट, फाइन। अब उन्होंने क्या पूछा है अपने को? उन्होंने क्या पूछा अपने को? एंगल एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन का, ठीक है, तो एंगल बिटवीन देम का फॉर्मूला क्या है? एंगल बिटवीन देम का फॉर्मूला है tan इनवर्स ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, करेक्ट, ऐसा ही हाँ है कि नहीं? हाँ ये फॉर्मूला है ना, दैट वी विल सी लेटर। हाँ अभी ये हमको एंगल बिटवीन लाइंस का जो फॉर्मूला है वो अब तक हमने देखा है क्या? अभी तक नहीं देखा, राइट? नहीं देखा क्या अभी तक? नहीं देखा, बट वो फॉर्मूला वैसे ही आता है, यू आर श्योर अबाउट दैट, राइट? है कि नहीं? यस हाँ हाँ पक्का वही आता है ना? हाँ हाँ ओके ओके सो अभी हमारा प्रॉब्लम इजी हो गया, राइट? ये ए, ये a प्लस 3b और ये 3a प्लस b, these are the same coefficients of this homogeneous line, right? है कि नहीं? हाँ अब हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बताओ? अगर मतलब तो उसको दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके फिर इक्वेशन निकाला तो फिर और फिर स्लोप निकालना मतलब जैसे m1 प्लस m2 फिर सो अब मेरे पास में यहाँ पे क्या दिया है? ये ऑक्सिलरी इक्वेशन उन्होंने दिया है हमको सॉल्व करने के लिए, राइट? है कि नहीं? हाँ ऑक्सिलरी इक्वेशन दिया है उन्होंने सॉल्व करने के लिए, सो m स्क्वायर यहाँ पे क्या आएगा फिर? bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0, ये क्या आ रहा है हमारे पास इक्वेशन? bm स्क्वायर हाँ प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0, ठीक है, हाँ फाइन। bm स्क्वायर प्लस 2hm, ठीक है, प्लस a इज इक्वल टू 0, करेक्ट? हाँ उन्होंने क्या दिया हुआ है?
4h² 4h² इज इक्वल टू a+3b इंटू 3a+b, ऐसा दिया उन्होंने। a+3b इंटू 3a+b, ऐसा दिया है उन्होंने, करेक्ट है कि नहीं? हाँ एंड व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन? स्लोप ऑफ द लाइन क्या होता है? m1 जो है इज इक्वल टू माइनस h, अच्छा, क्या है, प्लस माइनस, माइनस हाँ प्लस माइनस, हाँ प्लस लेते हैं पहले, अंडर रूट h² माइनस ab अपॉन, यहाँ पे क्या बी। आता है, यहाँ पे b है, करेक्ट हाँ है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ यही है ना? हाँ हाँ ठीक है। और m2 जो है वहां पे, यहाँ पे माइनस h माइनस अंडर रूट h² माइनस ab अपॉन b, करेक्ट, फाइन। हेलो, हाँ हेलो हाँ। हाँ, तो उसके बाद अगर सपोज मैं m1 माइनस m2 करता हूँ तो क्या मिलता है मुझे? 2 अंडर रूट h² माइनस ab अपॉन, क्या है, अपॉन b, ऐसा ही है ना, है कि नहीं? हाँ हाँ करेक्ट। हाँ अब इन्होंने m1 इज इक्वल टू माइनस लिया है, ठीक है, इन्होंने m1 माइनस लिया है, तो लेट अस से मैं इसको पहले माइनस लेता हूँ और यहाँ पे प्लस लेता हूँ, तो दिस विल बी माइनस, ठीक है। और m1 m2 क्या है? m1 m2 क्या है मेरा यहाँ पे, ठीक है, व्हाट इज m1 m2? स्लोप, द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स ए पॉन बाय बी। b, a अपॉन b, ठीक है। सो ये a अपॉन हाँ b, करेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हाँ h² की जगह ये सब्स्टिट्यूट करता हूँ, कर सकता हूँ ना सब्स्टिट्यूट ये, हाँ की जगह पे, की जगह पे a+3b इंटू 3a+b होल अपॉन 4, ऐसा सब्स्टिट्यूट करता हूँ, ठीक है। हाँ आई गेट 2 अंडर रूट a+3b, हाउ मच टाइम इज लेफ्ट, 4 minutes, ओके, इंटू 3a+b होल अपॉन 4, ठीक है, माइनस ab अपॉन, क्या है, 1 प्लस a/b, करेक्ट है कि नहीं? हाँ सो आई एम जस्ट कैलकुलेटिंग द एंगल, राइट, मतलब m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, यही कैलकुलेट कर रहा हूँ ना मैं, है कि नहीं? हाँ हाँ करेक्ट। सो आई गेट 2, देन अंडर रूट, आई एम नॉट मल्टीप्लाइंग इट, ओके। अब ये जो ब्रैकेट है ऊपर ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, आई गेट 3a² प्लस ab प्लस 9ab, ठीक है, फाइन, हाँ प्लस हाँ 3b², ठीक है कि नहीं? हाँ प्लस हाँ 4ab, ऐसा आया मेरे पास में, हाँ होल अपॉन 4, करेक्ट। और दिस इज 1 प्लस a/b, करेक्ट, हाँ इक्वल टू -2 अंडर रूट, यहाँ पे क्या आता है, 3a² प्लस 3b², 10 माइनस 4ab 6ab प्लस 3b²। 3a² प्लस 3b², ओके, -6ab, करेक्ट है कि बी नहीं, हाँ अपॉन 4 होल अपॉन b प्लस a/b, करेक्ट, हाँ ऐसा ही है, हाँ इज इक्वल टू -2, फिर अंडर रूट, यहाँ पे 3 कॉमन लिया, दिस इज a-b होल स्क्वायर, राइट, अपॉन हाँ 4, करेक्ट, और और ये हाँ a+b/b, करेक्ट, हाँ इज इक्वल टू -2/2 इंटू √3 इंटू a+a-b, ए मा ठीक है, होल अपॉन हाँ a+b अपॉन b, ठीक है, हाँ इसमें कोई डाउट है? हाँ नहीं यहाँ पे प्लस आएगा, तुम गलती कर रहे हो, मुझे बताते भी नहीं हो तुम, यहाँ पे +6ab है, समझा?
हाँ समझा हाँ कि नहीं हाँ समझा? हाँ, हाँ समझा। ठीक है। फिर नाउ इट इज, ये सब कैंसिल हो गया, सो आई गेट ओनली √3b। ओके, √3b आया। हाँ हाँ सो द आंसर शुड बी tan इनवर्स ऑफ √3 माइनस √3b। ये आंसर है या नहीं है? या फिर तुमने, आ, या फिर तुमने मुझे कुछ नहीं। गलत, तुमने क्या बताया मुझे? समथिंग इज नॉट गिवन करेक्ट यहाँ पे। यहाँ पे जो है, जो डेटा है, यहाँ पे इट शुड बी एटलीस्ट, यहाँ पे 20 होना चाहिए आई गेस, आइडियली, तब जाके वो कैंसिल होगा ना। और यहाँ पे कुछ और होना चाहिए। क्या गलत है डेटा में? हेलो राधा? नहीं, कुछ भी तो गलत नहीं है। हाँ, तो फिर गलत क्यों आ रहा है अपना आंसर? क्वेश्चन। तो 60 डिग्री आना चाहिए एक्चुअली उसका आंसर, 60 डिग्री आना चाहिए उसका आंसर। हेलो? हाँ हेलो। स्क्रीन दिख रहा है मेरा? हाँ ये बी हमने मिस कर दिया, इसलिए हमारा आंसर गलत आ रहा था। ठीक है, तो दिस इज होल अपॉन बी, राइट? ये बी फिर फाइनल कैंसिल हो जाता है। समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ होल अपॉन बी हाँ था ना, है कि नहीं? करेक्ट। हाँ तो इसलिए, एंड जो हमारा फॉर्मूला है, इट इज ऑलवेज tan इनवर्स ऑफ, tan इनवर्स ऑफ मॉड m1 माइनस m2, ओके, होल अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, इसका हाँ मॉड है, क्योंकि हमारा आंसर तो यहाँ पे क्या आया था, नेगेटिव आया था ना, ये बी नहीं है यहाँ पे, ये बी कैंसिल हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, सो हमारा इट इज, सो इट कैन बी, मतलब ये लाइंस कैसे हैं, ये 60 डिग्री है, ठीक है, एंड ये हमारा 120 डिग्री है, राइट? है कि नहीं? हाँ तो हम लोग एंगल छोटा वाला लेते हैं, एक्यूट एंगल लेते हैं। ओके, वी टेक द एक्यूट एंगल दैट इज 60 डिग्री। इज दिस करेक्ट आंसर? हाँ सच्ची हाँ। ओके, या, सो लेट अस, अभी हमने ऑलमोस्ट सारा थियरी कर लिया है उसमें, ये सारा, ये सबसे फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। ओके, इसमें ज्यादा तुमको एकदम ही, क्या बोलते हैं, बहुत सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। हेलो? हाँ हाँ, इसमें बहुत ज्यादा चीजें करने की जरूरत नहीं है तुमको। यू नीड टू, you need to mostly go through the formulas only. Okay, I leave the exercise हाँ one to you. Okay, ये तुम्हारा बोर्ड का चैप्टर है राधा, तुमको आना ही चाहिए, एक्चुअली तुमने मुझे सिखाना चाहिए। ठीक है, तुमने मुझे सिखाना चाहिए। हाँ, अब उन्होंने क्लियरली दे रखा है। ठीक है, एंगल रिप्रेजेंटेड बाय दिस, अगर ऐसा हुआ है तो उन्होंने क्लियरली फॉर्मूला दे रखा है, sin थीटा इज इक्वल टू ये 2√h² माइनस ab बाय a प्लस b। समझ गया? तो हमने जो चीज किया हाँ वो सेम ही चीज है यहाँ पे, वो सेम ही चीज है। ठीक है, sin थीटा इज इक्वल टू m1 मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 किया ना हमने, है कि नहीं? हाँ समझ गया? तो ये सेम ही फॉर्मूला आता है। ठीक है, समझ गया? हाँ इसके ऊपर भी तुम्हारा एक्सरसाइज है। ठीक है, कर लो, जितना हो सके कर लो, कुछ है नहीं इसमें। सॉल्ड एग्जांपल देखो, मैंने जैसे बोला कि काफी सिंपल, सबसे सिंपल चैप्टर है ये। ठीक है, और इससे ज्यादा सिंपल लीनियर प्रोग्रामिंग है, और इसमें से श्योर शॉट क्वेश्चंस आने वाले हैं, 2 मार्क के क्वेश्चंस श्योर शॉट है। ठीक है, फाइन। हाँ तो 4.1 एंड 4.2 आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस। ओके, ठीक है, ट्राई टू सॉल्व देम हाँ and come up with the doubts tomorrow. Okay, try to solve them and come up with the हाँ doubts tomorrow. Okay, yeah, now let us go to this section 4.4. I guess this is the last, you know, maybe, yeah,
Yeah, this is the last thing. Okay, now let us see what is given in this 4.4. तो देखो ये चैप्टर कैसा है, तुमको M1 एंड M2 फाइंड करने का है. ओके, तो तुमको क्वेश्चंस कैसे आएंगे, एंगल फाइंड आउट करो, ठीक है, या फिर सेकंड लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करो, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है, हाँ हेलो, आर यू देयर? या हाँ now if they are here, they are coming general second degree equation in x and y. ठीक है, ओके. हाँ अभी होमोजेनियस नहीं है, ठीक है, ये होमोजेनियस नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या है, here you have an extra constant c coming up. ठीक है, मतलब these are not passing हाँ through the origin. ठीक है, these are those kind of lines. Okay, हाँ then they हाँ are coming up with the conditions. ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने कंडीशंस दिए हैं. These lines are parallel to the lines represented by ax square plus 2hx square plus by square is equal to 0. ठीक है, मतलब अगर सपोज हमारा ये ऐसा आता है इक्वेशन, ठीक है, तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म्स प्लस 2gx प्लस 2f5 प्लस c है, राइट, है कि नहीं. तो ये बोल रहा है कि these pair of lines are also parallel to these pair of lines ax square plus 2hx5 plus by square is equal to 0. समझ गए वो क्या बोल रहा है? हाँ हाँ एन एक्यूट एंगल भी यही दिया हुआ है, 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी बाई ए प्लस बी. सो अगर हमको पेयर ऑफ लाइंस ऐसा दिया हुआ है तो हमको इस फॉर्म में लिखते आना चाहिए. वंस यू राइट द इक्वेशन इन दिस फॉर्म, ओके, या तो पेयर ऑफ लाइंस होमोजेनियस होंगे, मतलब यहाँ पे ये होमोजेनियस है क्या, नहीं है, राइट, करेक्ट. नहीं हाँ एंड सो उनने कंडीशंस भी दे रखे हैं, द नेसेसरी कंडीशन दैट ये जो सेकंड डिग्री इक्वेशन जो है, इट रिप्रेजेंट अ लाइन, दिस होल इक्वेशन जो है ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस बीजी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, और एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये सेटिस्फाई होना चाहिए. गिवन दैट दिस हाँ इज एग्जाम, गिवन दैट दिस इज अ सीईटी एग्जाम, डोंट एक्सपेक्ट दिस थिंग. ओके, यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस थोड़े ट्विस्ट करके 4.3 तक ही एक्सपेक्ट कर सकते हो तुम, सेक्शन 4.3 तक. ओके, यू कैनॉट एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. ओके, ये तुम्हारे जेई लेवल के क्वेश्चंस है, जेई मेंस में वगैरह आते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चंस. ओके, समझ हाँ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, हाँ हाँ let's conclude this chapter because we have to go to circles also. ठीक है, and we have to study some concepts where we have to see what is the distance of a point from a line, okay, and the distance between two parallel lines. Okay, मैं दोनों कंसेप्ट जो है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली लाइंस के कंसेप्ट, मतलब 2D लाइंस के कंसेप्ट में. मैं 3D का तो ऑलरेडी दिया हुआ है ना, डिस्टेंस के सारे फॉर्मूले दे रखे हैं. ओके, आई एम जस्ट सेइंग हाँ ये 2D में हम लोग को अगर एक पॉइंट दिया हुआ है और एक पैर ऑफ एक लाइन दिया हुआ है, ठीक है, लेट मी ड्रॉ इट लेट अस से हमारे पास में एक ऐसा लाइन है, राइट, और मेरे पास में एक पॉइंट है यहाँ पे. ठीक है, तो ये लाइन तो ऐसा एक्सटेंड हो रहा है, सो आई हैव टू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस, राइट, ये डिस्टेंस कितना है, इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस कितना है. ठीक है, इसके फॉर्मूले दिए हुए हैं तुमको पार्ट 1 11th में ये सारा तुमको कंसेप्ट सिखाया गया है. बट मैं बोल रहा हूँ कि इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द थ्रू द फॉर्मूलास, ओके, लेट अस try to solve the problems conceptually. Let us try to solve the problems conceptually. Correct? हाँ Okay. Now let us go to the हाँ 11th straight lines and see कि कैसे टाइप के क्वेश्चन है उसमें. ठीक है, let us go to the straight lines chapter and see कि उसमें कैसे टाइप के क्वेश्चंस. So how much comfortable are you with this thing? Straight lines chapter. actually I just know some equations and all but not much about it. Okay. अब देखो इन्हें बहुत सारे फॉर्मूले दे रखे हैं, डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन एंड ऑल दोस थिंग्स. ठीक है, अब तुमको लगता है क्या कि सही में तुम इतना सारे फॉर्मूले याद रख पाओगे, लगता है तुमको? नहीं नहीं लगता, राइट. ओके, तो हाँ जैसे एक बार
मैंने जो अभी once you finish the recording of this lecture, okay, I'll be uploading this lecture सिर्फ स्ट्रेट लाइंस के लिए, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस से स्ट्रेट लाइंस के लिए. सो यू कैन जस्ट गो एंड सी की जो है वहां पे या हमको कौन से इंपॉर्टेंट ये है फॉर्मूले से. ठीक है. हाँ. So यहाँ पे I'm just going scrolling to the top first. Okay. स्ट्रेट लाइन. ठीक है. लोकस के क्वेश्चंस आते हैं. ओके. लोकस के क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है. फ्रॉम स्ट्रेट लाइन. पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में तुमको स्लोप के क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है. स्लोप के क्वेश्चंस आएंगे. m1 m2 तुमको फाइंड आउट करना पड़ेगा या दोनों लाइंस के बीच में एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा. सो व्हेन यू हैव पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ होमोजेनियस लाइंस स्पेसिफिकली, तो तुमको डायरेक्ट फॉर्मूला तुम यूज कर सकते हो. राइट. वो जो हमने पढ़ा था, रूट 2h² - ab अपॉन a + b. करेक्ट. वो वाला फॉर्मूला हमने देखा था. हाँ. राइट. तो वो तुमको क्या बोलते हैं वो तुमको करना पड़ेगा याद. ठीक है. एंड देन अभी जैसे जो क्वेश्चन बताया था मुझे, तो हमने क्या किया था कि h² की वैल्यू थी, फिर वो सब्स्टिट्यूट की वहां पे, एंड देन वो a + b कैंसिल हो गया, एंड देन वी गॉट सम वैल्यू. ठीक है. तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस वहां पे सीईटी में पूछे जा सकते हैं. ठीक है. एंड देन इफ यू स्ट्रेट लाइन, तो हमको यहाँ पे सेम ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि एक पॉइंट है तो उसका डिस्टेंस निकालो. एक पॉइंट है उसका डिस्टेंस निकालो लाइन से. ठीक है. एंड ओके, सो नाउ लेट अस सी कि लोकस का क्या प्रॉब्लम है. ठीक है. एग्जांपल नंबर 1, we know that the y-coordinate of every point on the x-axis is 0, and this is true for the points on the x-axis only. Therefore, the equation of the line x-axis is y is equal to 0. Correct? Fine. हाँ. Okay. Now let L, मतलब इस एग्जांपल नंबर 2 पढ़ रहा हूँ. Let L is equal to P, where OP is equal to 4. Find the equation of L. तो इक्वेशन ऑफ OP is equal to 4 मतलब क्या? मतलब मेरा जो पॉइंट P है उसका डिस्टेंस जो है वो ओरिजिन से बिल्कुल कांस्टेंट है 4. सो दिस गिव्स अस अ सर्कल ओनली. राइट. है कि नहीं? दिस गिव्स अस अ सर्कल ओनली. करेक्ट. उसका लोकस क्या है? उस पॉइंट का लोकस क्या है? लोकस मींस द पाथ ऑफ द, लोकस मींस नथिंग बट द पाथ ऑफ द पॉइंट. करेक्ट. द पाथ ऑफ द पॉइंट. समझ गया क्या बोल रहा हूं? हाँ. Yeah. I'm not going to dwell much into this exercise 5.1. Let us try to do one problem. Even if you are not able to do, don't get dejected. Okay. If A 4,1 and B 5,4, I'm reading the fourth wala problem. Okay. Fourth wala problem. Okay. If these two, find the equation of the locus of the points P is P if PA² is equal to 3PB². हाँ, अब ये कैसे करोगे? इसको ये इक्वेशन देख के कुछ तुमको समझ में आ रहा है कि क्या बनेगा? सर्कल बनेगा, क्या बनेगा? किस टाइप का कोनिक सेक्शन बनेगा ये? मतलब सर्कल बनेगा, लाइन बनेगा, पैराबोला बनेगा, इलिप्स बनेगा, हाइपरबोला बनेगा? क्या लग रहा है तुमको? ओके, लेट अस फॉरगेट दैट थिंग. लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट PA². ओके. हाँ. वो बोल रहा है कि PA² इज इक्वल टू 3PB². करेक्ट. ऐसा बोल रहा है वो. फाइन. हाँ. सो अब A मुझे दिया हुआ है 4,1. करेक्ट. A मुझे दिया हुआ है 4,1. ठीक है. B मुझे क्या दिया हुआ है? B मुझे क्या दिया है? 5,4. 5,4 दिया हुआ है. करेक्ट है कि नहीं? हाँ. let the point P be equal to x, y. ऐसा मैं बोल रहा हूँ. So PA² is nothing but x - 4 होल स्क्वायर प्लस y - 1 होल स्क्वायर. ये तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा रहा हूँ. राइट. है कि नहीं? एंड PB² is equal to x - 5, ये 5 है, x - 5 होल स्क्वायर प्लस y - 4 होल स्क्वायर. करेक्ट है कि नहीं? करेक्ट. अब इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3PB² को. ठीक है. मैं पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. ठीक है. सो x - 4 होल स्क्वायर प्लस y - 1 होल स्क्वायर. ठीक है. इज इक्वल टू 3 इंटू x - 5 होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू
y माइनस 4 होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा ही है ना ये, करेक्ट? हाँ अब मैं एक्स स्क्वायर, आई एम जस्ट एक्सपांडिंग इट, स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, ओके, माइनस 30x, ओके, प्लस 25 प्लस 3y स्क्वायर माइनस 24y प्लस 25 इंटू 3 रहेगा, एक्चुअली यहाँ पे 75 रहेगा, दिस इज 16 इंटू 3, इट इज 48, ओके, है कि नहीं? हाँ अब मैं ये सारे एक्स स्क्वायर के वाई स्क्वायर के सारे जितने भी टर्म्स है ये सब उस तरफ लेके गया मैं, सो आई गेट 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस, सो माइनस 30x प्लस 8x किया 22x, ठीक है, फाइन। अब ये यहाँ पे क्या, हाँ 75 प्लस 48 कितना हो गया, 123 हो गया, राइट? हाँ 123, 123 हाँ 123 माइनस 17, 123 माइनस 17, 17 क्यों, ये 16 और ये 1 को ऐड कर रहा हूँ मैं, है कि नहीं? हाँ सो 123 माइनस 17 कितना होता है, 106 106 106, या 106, इज इक्वल टू, फिर सॉरी यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं, प्लस 2y स्क्वायर, ठीक है, माइनस 24 प्लस 2y, यहाँ पे भी माइनस 22y, करेक्ट, फाइन, हाँ इज इक्वल टू 0, ऐसा ही है ना यहाँ पे, हाँ ओके। अब यहाँ पे मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, आई गेट x स्क्वायर माइनस 11x, फाइन, x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 53 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 11y इज इक्वल टू 0, ठीक है, हाँ दिस इंप्लाइज x स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं x माइनस 11/2 होल स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूँ, राइट, प्लस y माइनस 11/2 होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 इंटू 11/2 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 53 इज इक्वल टू 0, करेक्ट, हाँ समझा? हाँ x माइनस 11/2 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y माइनस 11/2 होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे माइनस कितना आता है, 121 इंटू 2, 242/2 प्लस 53 इज इक्वल टू 0, क्या किस चीज का इक्वेशन है फिर ये मेरा सर्कल का इक्वेशन है ना, x माइनस 8 सर्कल का प्लस, है कि नहीं, हाँ 136/2, ठीक है, ऐसा है, हाँ कोई डाउट है इसमें? नहीं ओके, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, फाइन। अब हाँ simple, I'm not going to go much into the details, y is equal to mx plus c ये लाइन का इक्वेशन होता है, ठीक है, where m is the slope of the line, ठीक है नहीं, m is the slope of the line, एंड अगर हमको ये पता है कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो उन दोनों के स्लोप को अगर हमने मल्टीप्लाई किया वी गेट m1 is equal to -1, करेक्ट, परपेंडिकुलर मतलब वो 90 डिग्री का एंगल एक दूसरे के बीच में बना है, और स्लोप जो है इट इज ऑलवेज y2 minus y1 upon x2 minus x1 which is the which are the 2 points on the line, right? So x1 y1 is 1 point and x2 y2 is another point on the line, right? समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ ठीक है, ये मैं नहीं पढ़ा सकता, दिस इज वेरी बेसिक, वेरी ट्रिवियल, फाइन। हाँ आई एम गोइंग टू स्किप दिस एक्सरसाइज 5.2 आल्सो, ओके। सो उन्होंने अलग अलग इक्वेशंस दिए हुए हैं, y is equal to mx is basically line passing through the origin, right? फाइन, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में भी दिया हुआ है, y is equal to mx plus c ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्म में दिया हुआ है, ऐसे अलग अलग फॉर्म्स दिए हुए हैं which I guess should be very simple for you, is it not? उस प्रॉब्लम में यस इट इज इट इज, नहीं हाँ, ठीक है,
Now, if I have to basically find the distance, ठीक है, find the distance of the line from a point, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला कुछ दिया होगा उन्होंने, राइट? फॉर्मूला दिया हुआ है ना, ये पोर्शन में है ना अपना, पक्का स्ट्रेट लाइंस पोर्शन में है, राइट? हाँ स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पोर्शन में है अपना, ठीक है। ओके, सो डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द लाइन। अब ये तुम इतना फॉर्मूला रटोगे? नहीं रट सकते, राइट? रट सकते हो क्या तुम? हाँ रट नहीं सकते हो क्या? फिर नहीं। कैसे, कैसे करोगे फिर? कैसे फाइंड आउट करोगे ये डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस? हर एक का फॉर्मूला दे रखा है उन्होंने, ठीक है, तो कैसे करोगे? लेट अस टेक सम एग्जांपल, मतलब हम लोग अनसॉल्व्ड एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। हेलो। हाँ हाँ, हम लोग क्या बोलते हैं, अनसॉल्व्ड एग्जांपल लेते हैं and let us try to find out. Before that, let us take a break of, let us say, 15 minutes, then we'll be back. Okay? हाँ Yeah? यस। Yeah. I've started the recording now. Problem number 18. If A 4 by 3, 4, 3, B 0, 0, and C 2, 3 are the vertices of triangle ABC, correct? Find the equation of the bisector of angle BAC. So let us say B is at origin. Okay, B is the origin, right? Can you see? ओके हाँ B is the origin. Okay, A is somewhere here, 4, 3, right? A is here, 4, 3, and C is 2, 3. A is 4, 3, and C is what? 2, 3. ठीक है? हाँ है कि नहीं? And this is point A. This is A, right? This is B. This is C. So this is A and this is C. Correct? ऐसा ही है? हाँ Okay. And they're asking us to find the equation of the bisector of angle BAC. Correct? हाँ BAC का बाइसेक्टर एंगल निकालने को बोल रहे हो, ठीक है कि नहीं? सो दिस इज द बाइसेक्टर एंगल, लेट अस थीटा थीटा। ओके, हाँ, अब कैसे करोगे तुम इसको? कैसे करोगे बताओ? व्हाई आई हैव मेड दिस एज 90 डिग्री? क्यों 90 डिग्री क्यों बनाया मैंने इसको? एक्स कोऑर्डिनेट सेम है ना, एक्स कोऑर्डिनेट सेम हाँ है कि नहीं? हाँ एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, सो अगर मैंने ए और सी को ज्वाइन किया तो वो क्या करेगा? एक्स एक्सिस को जाके यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, करेक्ट? हाँ नाउ तो अगर ये मेरा, आई एम एक्सटेंडिंग दिस आल्सो हियर, ठीक है, फाइन। हाँ सो नाउ दिस इज 90, ठीक है, करेक्ट? ओके, हाँ अब ये मेरा एंगल कितना है फिर अभी? ये एंगल कितना है? एंगल ए बी, लेट अस से दिस इज बी, राइट? तो मैं इसको मान लो कि मैं इसको डी मानता हूँ, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मैं डी मानता हूँ, ठीक है, दिस पॉइंट ऑफ हाँ इंटरसेक्शन डी। अब मेरा एंगल, एंगल ए बी डी कितना हुआ? 90। ए बी डी 90 कैसे हो गया? नहीं देखो, नहीं वो तो ठीक है। हाँ, डी 90 होगा तो फिर ये और ये जो है, ठीक है, दिस इज बी, दिस इज डी, ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर है, राइट? ये ऐसा है ना मेरा, हाँ ये सी है, ये ए है, करेक्ट? ऐसा ही है कि नहीं? और ये मेरा 90 है, राइट? ये मेरा 90 है ना,
हाँ और ये मेरा 2 थीटा है, हाँ ये मेरा 2 थीटा हाँ है कि नहीं? ये मेरा कितना हो गया? 90 हाँ माइनस थीटा हो गया, 90 माइनस 2 हाँ थीटा ना, है कि नहीं? 90 माइनस 2 थीटा। और लेटस से इसको मैं थीटा मानता हूँ, फॉर सिंप्लीफिकेशन आई एम लेटस से दिस इज थीटा, तो दिस इज 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, करेक्ट है कि नहीं? ये एंगल हाँ ए बी डी, करेक्ट है कि नहीं? हाँ अब ये यहाँ पे देखो, ये ए पॉइंट क्या है? 4,3 है, दिस इज द ओरिजिन, ये ओरिजिन है ना? ये बी पॉइंट ओरिजिन है, राइट? हाँ सो माई y इज इक्वल टू 4/3x, ऐसा मैं ले सकता हूँ उसका स्लोप। हाँ सो फॉर x इज इक्वल टू 3, दिस y इज इक्वल टू 4, राइट है कि नहीं? 4/3x हो गया, करेक्ट? हाँ सो tan इनवर्स 4/3 इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, ऐसा है, करेक्ट हाँ है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ सो थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस tan इनवर्स 4/3, ऐसा है मेरे पास में, करेक्ट हाँ है कि नहीं? सो नाउ आई हैव हाँ टू फाइंड आउट, और अब मुझे मुझे ये इक्वेशन का लाइन फाइंड आउट करना है ना, जो ए से पास हो रहा है, ठीक है? ठीक है कि नहीं? हाँ ठीक। अब अगर सपोज ये थीटा है, सॉरी, जस्ट ड्राइंग अ न्यू फिगर हियर, ठीक है? ये ए, ये सी, अगर ये पूरा थीटा है तो ये पूरा थीटा/2 हो गया, राइट है कि नहीं? थीटा/2 हो गया, हाँ ये भी थीटा/2 हो गया, करेक्ट, फाइन, ये भी थीटा/2। हाँ लेट अस से दिस पॉइंट इज व्हाट, ये मैंने अगर डी माना था, ये बी है, ये ए और सी है, लेट अस से दिस पॉइंट इज सम ई, ठीक है? लेट अस से दिस पॉइंट इज सम ई, ओके? सो एंगल ए ई डी इज इक्वल टू थीटा/2, करेक्ट? और हमको थीटा हाँ थीटा मिल चुका है, राइट? 90 माइनस tan इनवर्स 4/3, करेक्ट, ऐसा हमको मिल चुका है ना, हाँ है कि नहीं? हाँ कि नहीं, बताओ जल्दी, करेक्ट, हाँ ओके? फिर अब क्या करना है अपने को? थीटा/2 निकालना है अपने को, ठीक है? थीटा/2 निकालना है। हाँ सो आई टेक थीटा/2 इज इक्वल टू 90/2 माइनस माइनस व्हाट, हाफ ऑफ tan इनवर्स, सॉरी, थीटा/2 just taking it, it's 45 minus half of tan inverse 4/3, correct? agree. Okay? हाँ Now let us say tan inverse 4/3 is equal to some alpha. Let us say this is equal to some alpha. Okay? So half will be equal to half. है कि नहीं? Correct? हाँ है कि नहीं? So I know that यहाँ पे tan of alpha is equal to 4/3, correct? tan of alpha is equal to हाँ 4/3, है कि नहीं? अब अपने को क्या निकालना है? अब हमको इसका tan निकालना है, इसका tan निकालना है। Why are we doing this exercise? Because we want to find out the slope of this line. कौन सी लाइन? ये वाले लाइन को हमको स्लोप निकालना है। ये AE जो है, इसका हमको इक्वेशन अगर हाँ निकालना, स्लोप निकाल लिया, हमको ये पासिंग पॉइंट पता है, दैट इज सफिशिएंट, राइट है कि नहीं? दैट इज हाँ सफिशिएंट, राइट? हाँ या सो आई टेक tan of
theta by 2 is equal to tan of 45 minus half and tan inverse 4 by 3, करेक्ट है कि नहीं? हाँ ओके, सो दिस इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस tan ऑफ हाफ tan इनवर्स 4 by 3 on 1 plus tan of tan half of tan इनवर्स 4 by 3, करेक्ट? तो मैंने अब यहाँ पे क्या लिखा था, हाफ ऑफ tan इनवर्स 4 by 3 इज इक्वल टू अल्फा बाय 2, राइट? अल्फा बाय 2, राइट? हाँ So this is equal to 1 minus tan alpha upon 1 plus tan alpha, correct? And where alpha हाँ equal to half of tan inverse, tan inverse 4 by 3, ठीक है? This is alpha by 2, tan of alpha by 2 plus 1 plus tan alpha by 2. तो ये tan alpha by 2 मैं कैसे फाइंड आउट करूं? So tan alpha is equal to 2 tan alpha by 2, ठीक है, इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2. ये मेरा पास इक्वेशन है, राइट? है कि नहीं है? हाँ हाँ है। हाँ, अब tan अल्फा की वैल्यू मुझे पता है, सो 4 by 3 इज इक्वल, लेट अस सेट tan अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, ऐसा लिखा मैंने, ठीक है? सो 4 हाँ माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 6x, ठीक है? सो 4x स्क्वायर हाँ प्लस 6x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, करेक्ट? 2x स्क्वायर हाँ 4x माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, फाइन. अब यहाँ पे 2x है, टेक कॉमन, आई गेट x प्लस 2 माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और 2x माइनस 1 इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. आई कैनॉट टेक x इज इक्वल टू माइनस 2 बिकॉज उससे क्या होगा कि मेरा tan अल्फा बाय 2 नेगेटिव आएगा, बट दिस इज अ एक्यूट एंगल, राइट? मुझे दिख रहा है फिगर में एक्यूट एंगल है, तो अगर एक्यूट एंगल है तो tan मेरा कभी भी ये नहीं हो सकता, 90 डिग्री से कम है तो मेरा tan कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगा, राइट? सो आई गेट ओनली वन वैल्यू, x इज इक्वल टू हाफ, करेक्ट? अगर x इज इक्वल टू हाफ निकला मेरा, तो मुझे मिल जाता है यहाँ पे जो थीटा बाय 2 है और tan थीटा बाय 2 है, tan थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 1 माइनस व्हाट, 1 माइनस हाफ अपॉन 1 प्लस हाफ और 1 बाय 3. ये स्लोप मुझे मिल गया है, ओके? सो y इज इक्वल टू 1 बाय 3x प्लस c, ये मुझे इक्वेशन मिल गया. अब मुझे जस्ट c फाइंड आउट करना है. सो व्हाट आई डू, मैं यहाँ पे, मुझे किस लाइन का इक्वेशन मिला है, किस लाइन का इक्वेशन मिला है मुझे, ये लाइन का, है कि नहीं? ये लाइन का मिला है ना हाँ मुझे, ठीक है? हाँ यही स्लोप फाइंड आउट किया ना मैं, tan थीटा बाय 2 फाइंड आउट किया ना मैंने, और वहां पे m की जगह डाल दिया मैंने. अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, वो 4 बाय 3 ए से पास हो रहा है ना, वो है कि नहीं? ए से हाँ पास हो रहा है वो, ओके? हाँ हाँ तो ए से अगर पास हो रहा है तो मैं y, मतलब मैं वहां पे ये डाल सकता हूँ ना, मैं क्या डाल सकता हूँ, मैं हाँ 4 इज इक्वल टू ओ 1 प्लस सी इज इक्वल टू 3 आएगा मेरे पास में. y इज इक्वल टू हाँ बाय 3 प्लस 3 इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है? हाँ इज इट करेक्ट और नॉट? हेलो, हाँ इज इट करेक्ट और नो, बताओ. x इज इक्वल टू 0 डाला, ये मेरा y क्या आता है मेरा,
हेलो, हाँ हेलो। y इज इक्वल टू एक्स बाई 3 प्लस 3, करेक्ट। तो मैंने अगर x इज इक्वल टू 0 डाला, ठीक है, ये मेरा ऐसा इक्वेशन ऑफ लाइन निकला है, ठीक है। मेरा स्लोप ऑब्वियसली पॉजिटिव है, ठीक है, 1/3 मेरा हाँ स्लोप है। सो मैंने x इज इक्वल टू 0 डाला, तो मेरा y क्या निकलेगा, y इज इक्वल 3। टू 3 निकलेगा हाँ मेरा। तो ये पॉसिबल है या नहीं है? तो सो दिस इज द वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। आई एम नॉट श्योर अबाउट द आंसर। मेरे ख्याल से तो मेथड तो सही है मेरा, देयर इज नो रॉन्ग इन द मेथोडोलॉजी। समझ में आया ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सो दिस इज द वे टू सॉल्व इट। मतलब मुझे ऐसा कोई दूसरा तरीका नहीं दिख रहा है इसको सॉल्व करने का। देयर कैन बी ऑल्टरनेटिव वेज ऑल्सो, ठीक है। इफ यू वांट टू चेक द आंसर वी कैन चेक द आंसर ऑल्सो, ठीक है। यू वांट टू चेक द आंसर, हम लोग कौन सा एक्सरसाइज कर रहे हैं? 5.4 का 18th वाला। 18। हाँ 5.4 का 18th वाला। x माइनस y इज माइनस प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ऐसा बोल रहे हैं। हेलो। हाँ हेलो। हाँ, वो बोल रहा है कि उसको इक्वेशन ये मिलता है। क्या हाँ है इक्वेशन? x माइनस 3y इज इक्वल टू 5, और सॉरी प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, और हमको क्या मिला है? y इज इक्वल टू एक्स बाई 3 प्लस 3, ये मिला है हमको इक्वेशन। हाँ। इज देयर एनी प्रिंटिंग मिस्टेक इन दैट क्वेश्चन? मुझे नहीं लगता। चैप्टर नंबर क्या था वो, पेज नंबर क्या था? 4,3 0,0 C2,3, then y is equal to 0, what should we get? इक्वेशन आया था ये वाला, उनका भी एक्स इंटरसेप्ट नेगेटिव है। ओके, आई गेस हमारा आंसर भी ऑलमोस्ट मतलब 3y माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और x प्लस 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन वी आर गेटिंग। दे आर गेटिंग द सेम इक्वेशन, बस उनका ये गलत आ रहा है, मतलब ये अलग आ रहा है। दैट विल वेरीफाई लेटर। ओके फाइन। हेलो, हेलो, हेलो। हेलो। हाँ। हाँ नेटवर्क इशू हो रहा है थोड़ा। ओके, या ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द सम अदर क्वेश्चन। ओके,
15th वाला, find the points on the line x plus y minus 4 is equal to 0 which are at 1 unit distance from the line x minus y x plus y minus 2 is equal to 0. Okay. क्या है वो दो लाइंस, x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0. ठीक है, ये 4 4 ये ऐसा लाइन पास होता है वो. ठीक है, दूसरा लाइन हाँ क्या है, ये ऐसा है राइट, 2 0,2 है ये, और ये 2,0 है. करेक्ट, ये दूसरा लाइन है राइट. अब ये हाँ है, you need to basically find out the points which are at a distance of 1 unit from this line. मतलब इस लाइन के ऊपर, लेट अस से दिस इज लाइन L and this is line M. ओके, तो L के ऊपर हमको वो सारे पॉइंट्स निकालने हैं which are at a distance of 1 unit from line M. Okay, now how do we do it? ओके, सो यहाँ पे देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2. ठीक है, वो सारे पॉइंट्स का वो इक्वेशन रहेगा. ठीक है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2. हेलो राधा, हाँ हाँ y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, ये इस लाइन का इक्वेशन है राइट. सेम सेम फॉर्म है, मैंने कुछ अलग लिखा है, बस मैंने y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखा है इसको. ठीक है, हाँ अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरा जो m की वैल्यू है वो -1 है. ठीक है, अब यहाँ हाँ पे इससे जो परपेंडिकुलर रहेगा उसकी वैल्यू क्या रहेगी मेरी, +1 रहेगी, बिकॉज m1 m2 हैज टू -1 राइट. m1 m2 हैज टू हाँ -1. ठीक है, सो अब मेरे पास में जो है, मुझे स्लोप की वैल्यू मिल गई है राइट. ठीक है कि नहीं, मुझे स्लोप की वैल्यू मिल हाँ गई है. अब मुझे जो मेरा दूसरा पॉइंट है, एक पॉइंट तो यहाँ पे है इस लाइन पे, एक पॉइंट इस लाइन पे है. ठीक है, अब जो दूसरा पॉइंट है वो मेरा इस लाइन पे है, x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0. x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0. करेक्ट है कि नहीं. हाँ ओके, एंड अब मुझे लेट अस से मैं इससे परपेंडिकुलर एक इक्वेशन निकालता हूँ. दैट इक्वेशन इज y इज इक्वल टू सम x प्लस सी. y इज इक्वल टू सम x प्लस सी. करेक्ट है कि नहीं. हाँ एंड मुझे पता है कि y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2. यहां से ये कहीं भी दो पे इंटरसेक्ट होगा ये वाला लाइन. ठीक है, ओके हाँ ठीक है, हाँ तो मैं x और y के कोऑर्डिनेट्स निकालूंगा. ठीक है, x एंड y के कोऑर्डिनेट्स निकालूंगा इन लाइंस के साथ में. करेक्ट, इन लाइंस के साथ. हाँ हाँ ठीक है, हाँ फिर मैं, हाँ, तो अब मुझे, और मैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी के इस लाइन के साथ में जहां पे इंटरसेक्ट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स निकालूंगा मैं. ठीक है, एंड आई विल गेट इन समथिंग इन टर्म्स ऑफ सी ओनली राइट. है कि नहीं, एंड दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो मेरा 1 दिया हुआ है. ठीक है, सो लेट अस से माय y हाँ इज इक्वल टू एक्स प्लस सी का मैं इसके साथ में, ये वाले लाइन के साथ में मैं एक इंटरसेप्ट निकालता हूँ, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट निकालता हूँ. ठीक है, सो आई सब्स्टिट्यूट y हाँ इज इक्वल टू एक्स प्लस सी हियर. y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी हियर. ठीक है, सो हाँ x प्लस सी इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2. करेक्ट है कि नहीं. हाँ हाँ ओके, सो 2x इज इक्वल टू 2 माइनस सी, और x इज इक्वल टू व्हाट, 2 माइनस सी बाय 2. करेक्ट, फाइन. हाँ ठीक है, और फिर मेरा y क्या रहेगा, x प्लस सी है ना मेरा, सो y इज इक्वल टू 2 माइनस सी बाय 2 प्लस सी. करेक्ट, इज इक्वल टू हाँ 2 प्लस सी बाय 2. तो मेरा जो ये वाला लाइन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, वो मेरा इस लाइन के साथ में इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होता है. कौन से पॉइंट पे, 2 माइनस सी बाय 2 और 2 प्लस सी बाय 2. ठीक है, ओके. हाँ हाँ अब जब मैं इस लाइन को इस लाइन के साथ इंटरसेक्ट करवा रहा हूं तो मुझे दूसरा कोई कोऑर्डिनेट मिलेगा राइट.
तो मैं वहां पे फिर से हाँ y की जगह में x प्लस सी मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ, ठीक है, y की जगह में x प्लस सी सब्स्टिट्यूट करता हूँ। सो x प्लस y माइनस 4 है, राइट, तो x प्लस सी माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो 2x इज इक्वल टू 4 माइनस सी, x इज इक्वल टू 4 माइनस सी बाय 2, करेक्ट। हाँ y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, मतलब 4 माइनस सी बाय 2 प्लस क्या c, है कि नहीं। सो आई गेट हाँ 4 प्लस सी बाय 2, है कि नहीं, 4 प्लस सी बाय 2। तो हाँ ये मेरे पास एक ये पॉइंट मिल गया 4 माइनस टी बाय 2 और 4 प्लस सी बाय 2, करेक्ट। तो ये हाँ जो पॉइंट है वो मेरे कौन से लाइन पे है, ये मेरे इस लाइन पे है, x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इस लाइन पे है ये। कैसे मिला था मुझे ये पॉइंट, मैंने क्या किया था, y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी को मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करवा दिया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करवा दिया। और ये वाला पॉइंट मुझे कैसे मिला था, मैंने y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी को मैंने इस वाले इसमें सब्स्टिट्यूट करवा दिया था, ठीक है, ठीक है। हाँ अब उन्होंने अब हाँ उनको क्या चाहिए कि भैया इन दोनों के बीच में मेरा जो डिस्टेंस है वो हमेशा बंद रहना चाहिए, हमेशा बंद रहना चाहिए, राइट। सो 4 हाँ माइनस बाई 2 और 4 प्लस सी बाई 2, ठीक है, हम्म 4 माइनस 2 माइनस सी बाई 2 एंड 2 प्लस सी बाई 2, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना रहना चाहिए, हमेशा बंद रहना चाहिए, राइट। हाँ तो अब मैं क्या करता हूँ, नेगेटिव मतलब निकालता हूँ डिस्टेंस, ठीक है। तो 4 माइनस सी बाई 2, ठीक है, माइनस 4 माइनस सी बाई 2, सॉरी 2 माइनस सी बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये पूरा अंडर रूट में है, ठीक है, प्लस 4 प्लस सी बाई 2 माइनस 2 प्लस सी बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसा निकाला मैंने, करेक्ट। हाँ सो अब ये ब्रैकेट में है, सो इट इज 2 बाई 2 होल स्क्वायर, यहाँ पे 2 बाई 2 प्लस होल स्क्वायर, ठीक है। क्या मिलता है मुझे डिस्टेंस यहाँ पे, क्या मिलता है मुझे डिस्टेंस यहाँ पे, रूट 2, राइट, रूट 2 मिलता है ना मुझे। हाँ डिस्टेंस कभी 1 हो सकता है कि दोनों लाइंस के बीच में, नहीं हो सकता। नहीं सो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग कि मुझे ऐसा एक भी पॉइंट नहीं मिल रहा है जिनका जो डिस्टेंस है वो 1 है इस लाइन पे। डिस्टेंस तो शॉर्टेस्ट ही होता है ना, आई कैन नॉट टेक द लॉन्गेस्ट, हाँ शॉर्टेस्ट ही होता है ना वो। हाँ इफ यू अप्लाई द सेम फॉर्मूला आल्सो, I guess we have find the points of the line x plus 5 minus 4 which are at a distance, at a 1 unit distance from the line x plus 5 minus 2 is equal to 0. There is no point actually, ठीक है, fine. हाँ हाँ Now let us move to the circles portion, okay. अब circles इसके बाद है exactly, right, circle इसके बाद है, hello, हाँ you need to revise the formulas, practice questions, okay. ये काफी simple exercise, काफी simple chapter है, 11 चैप्टर के 11 हाँ स्टैंडर्ड सिंपल चैप्टर है, लाइंस एंड सर्कल्स जो है काफी सिंपल चैप्टर है, ओके। सो दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ऐसा दिया उन्होंने, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, ठीक है। सेंटर रेडियस फॉर्म में अगर दिया है तो हम लोग ऐसा इसको लिखते हैं, करेक्ट, फाइन। सो द पॉइंट इज, हेलो, हाँ so this is a very simple exercise. I'm not basically going to discuss exercise 6.1 here, okay. The हाँ general equation of the circle is x square plus y square plus 2gx plus 2f plus c is equal to 0. तो अगर सपोज ये सर्कल है या नहीं अगर ये चेक करना है, सो डेफिनेटली मैं जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी हैज टू बी ग्रेटर देन 0, अदरवाइज इट इज नॉट अ सर्कल, ठीक है। हाँ
तो उन्होंने सीधा सीधा दे दिया है, इफ दिस इज ग्रेटर देन 0 लेट अस रिमेंबर में कि दिस इज रिप्रेजेंट सर्कल, ठीक है। अगर if this is equal to 0 then this equation represents a point which is true degenerating conic to degenerate conic and is limiting and is the limiting position, radius is 0, ठीक है। और ये जो है हाँ अगर लेस देन 0 रहा तो ये डेफिनेटली सर्कल नहीं है, ठीक है। हाँ ओके, नाउ circle they can define actually in the form of parameters also, okay। The theta is actually the angle subtended by the point P with respect to the x-axis in the anti-clockwise direction। ये समझा है कि नहीं समझा है? एक बार एक्सप्लेन कर सकते या डेफिनेटली, ओके, जस्ट 1 मिनट। अगेन बहुत सारे फॉर्मूलास, एक्सट्रीमली ज्यादा फॉर्मूलास, नो नीड ऑफ द फॉर्मूलास एट ऑल, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है फॉर्मूलास की, सब कंसेप्चुअली सॉल्व होता है, okay? If you know the concept well, सब conceptually solve होता है, except for 3D geometry। 3D geometry में थोड़े तुमको फॉर्मूला लगते हैं because on the time you cannot derive it, okay? On the time you cannot derive it, but formula dependent questions काफी कम देंगे वो लोग, ठीक है। मोस्टली conceptually questions देते हैं, ओके फाइन। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ ओके, सो पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द सर्कल क्या है यहाँ पे? ड्राइंग अ सर्कल लाइक दिस, ओके। मेरा एक पॉइंट P है, ठीक है, एंड ये मेरा सर्कल है, ओके, विद इट इज एक्चुअली विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, ओके। इट इज विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, मतलब उसका सेंटर जो है वो ओरिजिन पे है, इस सर्कल का सेंटर जो है वो ओरिजिन पे। लेट अस से दिस इज थीटा, दिस इज एक्स एंड वाई, ओके। हाँ दिस इज एक्स, दिस इज एक्स, ये एक्स है, ये आर है, ठीक है। सो हाँ और ये मेरा वाई है, राइट, ठीक है। सो वाई बाय आर इज इक्वल टू ट्रायंगल, देखो साइन थीटा, ठीक है, एंड एक्स बाय हाँ आर इज इक्वल टू कॉस थीटा, है कि नहीं? ये ट्रायंगल हाँ में ये ओ है, लेट अस से ये पॉइंट डी है, ठीक है कि नहीं? हाँ समझ गया? हाँ तो y is equal हाँ to हाँ r cos theta and x is equal to sorry y is equal to some r sin theta, हाँ x is equal to r cos theta, ठीक है, समझ गया? हाँ हाँ now this is what they call it as parametric form। अगर सपोज मेरा पैरामीट्रिक फॉर्म मतलब अगर मेरा सेंटर जो सर्कल का सेंटर है वो ओरिजिन पे नहीं है, ठीक है, तो उस केस में हाँ हाँ x is equal to h plus r cos theta and y is equal to k plus r sin theta। This is the parametric form, okay। Now I would strictly recommend you not to learn this formula for the tangent, not to learn this formula for the tangent, okay fine। ओके हाँ सारे ये सारे जो ये है ये they won't be asking you this thing in detail, okay okay। हाँ they will be asking you very मतलब काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछेंगे, फॉर्मूला बेस्ड पूछने की कोशिश नहीं करेंगे, ओके फाइन। हाँ लेट अस हाँ से we basically try to get the equation of the, let us try to solve one problem from exercise 6.3, okay। Let us solve the fifth one, okay, let us solve the fifth one। हाँ मैं यहाँ पे हाँ कोई भी अभी तक मैंने फॉर्मूला सिखाया कोई तुमको टेंजेंट वाला? कुछ नहीं फॉर्मूला नहीं सिखाया मैंने, करेक्ट, ओके। हाँ So find the equation of the tangent to the circle x square plus y square minus 4x plus 3y plus 2 is equal to 0। Okay, if I'm not able to finish the problem within 6 minutes, you can rejoin the meeting, okay। ओके Keep a look on the timer also. Start the timer for 6 minutes now. Fine. X square plus, can you repeat the question for me? X square plus y square minus 4x. Can you repeat?
plus 3y plus 2, hello, is equal to 0 ये at the point 4 comma minus 2. So 4 comma minus 2, पहली बात तो ये जो पॉइंट है ये सर्कल पे होना चाहिए, राइट? ये जो पॉइंट P है हाँ सर्कल पे होना चाहिए. So how do we verify? Just put substitute this point here and we should get 0, right? है कि नहीं? सर्कल पे है या नहीं है चेक करने के लिए. So 16 plus 4 minus 16, ठीक है, हाँ minus 6 plus 2, is it 0? Yes, it is 0. तो ये पॉइंट सर्कल पे है, करेक्ट? ये पॉइंट सर्कल पे है. हाँ What is the circle center? What is the circle center now? X square plus y square, मतलब मैं x minus 2 होल स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूँ ना मैं यहाँ पे, ठीक है, प्लस हाँ y प्लस 3/2 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3/2 होल स्क्वायर, ठीक है, ओके. हाँ फिर उसके बाद में -4, ठीक है, -9/4, ठीक है, प्लस 2 इज इक्वल टू 0. ऐसा ही है ये, सो इट हाँ इज x minus 2 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3/2 होल स्क्वायर, ठीक है कि नहीं, हाँ इज इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास में 2 प्लस 9/4, करेक्ट. 4 2 व्हाट 8. So I get the center of the circle equation as x minus 2 whole square plus y plus 3/2 whole square, ठीक है, is equal to what? हाँ 17/4. So r square is my 17/4 और r is equal to how much? √17/2, है कि नहीं? 2 ये है ना, हाँ है कि नहीं, ओके. हाँ हाँ. हाँ अब if I have to find the equation of the line, ठीक है, फ्रॉम 4 कमा -2, 4 कमा -2 है ना, और ये मेरा सेंटर क्या है, हाँ -3/2. इस इक्वेशन का लाइन मुझे फाइंड आउट करना है, तो क्या रहेगा वो, कैसे फाइंड आउट करूं मैं? y माइनस x -4, ठीक है, ओके. हेलो राधा, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है? y प्लस 2, ओके, हाँ y प्लस 2 अपॉन x -4 इज इक्वल टू व्हाट, -3/2 प्लस 2 अपॉन 2 -4. कैसे आई? इक्वेशन इज y minus y1 upon x minus x1 is equal to x2 y2 minus y1 upon x2 minus x1. This is the equation of the line. समझा? हाँ हाँ मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ हाँ ठीक है, we have 2 minutes left now. So we have y plus 2 by x minus 4 is equal to what? Half by -2. ठीक है? 2 हाँ हाँ है कि नहीं? फिर यहाँ पे y plus 2 is equal to क्या मिलता है मुझे, -1/4 इंटू x माइनस 4, करेक्ट? ऐसा ही हाँ हाँ है कि नहीं? एंड द पॉइंट वही दिया है ना उन्होंने, 4 कमा -2 ही दिया है ना उन्होंने पॉइंट, ठीक है. हाँ, सो आई गेट y प्लस 2 इज इक्वल टू -x/4, ठीक है, प्लस 1, ठीक. सो y इज इक्वल टू व्हाट, x/4 -1. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन. Rejoin the meeting now. Rejoin the meeting. ओके हाँ सो इफ यू सी कि ये किस लाइन का इक्वेशन है, इस लाइन का, जो ये पॉइंट है और ये सर्कल है,
सर्कल का सेंटर है, ये इस लाइन का इक्वेशन है, राइट। तो टेंजेंट इज व्हाट, परपेंडिकुलर, राइट। उसका स्लोप क्या रहेगा, मतलब अगर इस लाइन का स्लोप -1/4 है, सो फिर मल्टीप्लाई द स्लोप विथ ऑफ दिस लाइन, विल गेट इट एज -1, राइट, है कि नहीं? हाँ हाँ करेक्ट। So the equation of that line is, let us say y is equal to mx plus c, and that y is equal to 4x plus c. ये उस equation का line है, and I know that it passes through 4 comma -2. Correct? It passes through 4 comma -2. Correct? So -2 is equal to हाँ 16. है कि नहीं? 16 plus c. हाँ Yes or no? c is equal हाँ to -18. So the equation of the line, 18 equation of the line is y is equal to 4x minus 18. Understood what was the हाँ mistake I did? Hello? Understood what was the mistake I did जब मैं वो लास्ट वाला प्रॉब्लम कर रहा था? ठीक है, हाँ कौन सा वाला प्रॉब्लम कर रहा था मैं? या हियर, यहाँ पे यहाँ पे मैंने क्या किया था, 4,3 था ना वो पॉइंट, है कि नहीं? 4, हाँ 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 so I did one mistake there. यहाँ पे we need to redo this problem. We need to redo this problem because 4,3 और 2,3 ऐसा था ना, तो वो y कोऑर्डिनेट सेम है ना उसका, है कि नहीं? उसका y हाँ कोऑर्डिनेट, उसका x कोऑर्डिनेट सेम थोड़ी है। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ ठीक है, तो ये पॉइंट बी है, ठीक है, वो ये ऐसा है, दिस इज ए एंड दिस इज सी एंड दिस इज ए, ठीक है। हाँ ये ए है ना, 4,3 ऐसा दिया हुआ है, राइट। हाँ एंड वहां पे क्या दिया हुआ था हमारे पास में? सो दिस इज द थिंग, यू शुड करेक्ट मी यार, मतलब हमेशा मेरे लिए भी मैं ऐसा नया प्रॉब्लम ही उठाता हूँ। आई डेयर टू टेक द न्यू प्रॉब्लम बिकॉज आई वॉन्ट टू शो यू कि ऐसा हमको नया प्रॉब्लम आया तो हमको एकदम से सतर्क होकर सॉल्व करना है उसको। समझ में आया? ठीक है, इफ आई एम हाँ कमिटिंग अ मिस्टेक यू हैव टू करेक्ट मी, ठीक है। इफ आई एम कमिटिंग अ मिस्टेक यू हैव टू करेक्ट मी। दिस इज 2,3 ऐसा ही दिया है ना उन्होंने, है कि नहीं? हाँ और एंगल बाइसेक्टर किसका निकालना है? बी ए सी का निकालना, बी ए सी, इसका एंगल मतलब इसका एंगल बाइसेक्टर निकालना है कि नहीं? करेक्ट। हाँ ये 90 है, ठीक है, ये अगर 90 है, ठीक है, लेट अस से थीटा है, ठीक है, लेट अस से थीटा है, सो दिस इज आल्सो इक्वल टू थीटा, करेक्ट, दिस इज आल्सो इक्वल टू थीटा, राइट, है कि नहीं? हाँ हाँ समझ गया ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, हाँ हाँ और ये यहाँ पे कहीं पे तो भी इंटरसेक्ट करता है, ये कहीं पे तो भी इंटरसेक्ट करता है, ये जो एंगल बाइसेक्टर है, दिस इज द एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। सो हाँ अब मैंने क्या किया उसके बाद में, मेरे पास में इस लाइन का इक्वेशन आ गया है, y इज इक्वल टू 4/3x, है कि नहीं? हाँ 4/3x है कि 3/4 है? y इज इक्वल टू 3/4x है। समझा कि नहीं फोर समझा? 3 ये हाँ नहीं, समझा ये नहीं है, आई हैव टू सब्स्टिट्यूट, x की जगह पे मुझे 4 डालना है, तब जाके मुझे मेरा y 3 आएगा, राइट, है कि नहीं? सो इस इक्वेशन का जो, इस लाइन का जो इक्वेशन है वो 3/4 है, करेक्ट। हाँ हाँ, फिर उसके बाद क्या है? अब ये मेरा θ/2 है, ये मेरा θ/2 है, ठीक है, फाइन। तो ये मेरा कितना हो गया? ये मेरा कितना हो गया? 90 माइनस θ/2, करेक्ट, है कि नहीं? हाँ तो ये भी मेरा 90 माइनस θ/2 हो गया ना, ये ऑपोजिट एंगल, है कि नहीं?
हाँ हाँ है कि नहीं? और ये मेरा ये हाँ मेरा कितना हो गया फिर? ये मेरा θ/2 हो गया, करेक्ट? θ/2 हो गया। हाँ समझा कि नहीं समझा अभी तो? हाँ ठीक है, समझा ना? अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? हाँ ये मेरा 90 है, ठीक है, बिकॉज दिस इज सेम ना, मतलब ये एक्स एक्सिस से पैरेलल, राइट? तो ये y को परपेंडिकुलर है, ये y को परपेंडिकुलर है ये लाइन, ठीक है? दिस इज 90 माइनस θ/2, दिस इज ऑल्सो 90 माइनस θ/2 बिकॉज दिस इज अ दीज आर अपोजिट एंगल्स। सो इसका स्लोप जो है वो θ/2 है कि नहीं? और हमको एक 3/4 दिया हुआ है, राइट? सो 3/4 इज इक्वल टू 2 tan θ/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2, करेक्ट? ये बराबर है कि नहीं है कि नहीं? राधा, हाँ कोई हाँ डाउट हेलो हाँ इसमें कोई नहीं डाउट? हाँ, फिर उसके बाद में लेट अस से tan θ/2 इज इक्वल टू x, so 3/4 इज इक्वल टू 2x upon 1 minus x square, so 3 minus 3x square is equal to 8x, fine, so 3x square plus 8x minus 3 is equal to 0, so 3x square plus 9x minus x minus 3 is equal to 0. I get 3x minus 1 into x plus 3 is equal to 0. So I'll get x is equal to 1/3. मुझे पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा, मैं नेगेटिव नहीं ले सकता, ठीक है? समझ गया ना? हाँ हाँ ओके, हाँ तो मेरे पास में इक्वेशन क्या है लाइन का? y is equal to 1/3x tan θ/2 है ना उसका स्लोप, प्लस c, हाँ एंड इट इज पासिंग थ्रू 4/3, राइट? तो 4/3 हाँ 4,3 से पास हो रहा है, राइट? सो 3 इज हाँ इक्वल 4/3 प्लस c, करेक्ट है कि नहीं? सो हाँ c इज इक्वल टू 3 माइनस 4/3, ऐसा आएगा मेरे पास में, हाँ यस और नो? है कि नहीं? हाँ हाँ सो c इज इक्वल टू क्या आएगा? 5/3 आया, नहीं क्या है, सॉरी, 3 3 सा क्या आया? 9 9 में 5/3 आया, राइट? 5/3 आया ना मेरे पास में, ठीक है? 5/3 हाँ y इज इक्वल टू x/3 प्लस 5/3, करेक्ट? सो 3y हाँ माइनस x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0. सो दिस इज द करेक्ट इक्वेशन ऑफ विच लाइन? ऑफ द एंगल बाइसेक्टर. हमने एंगल बाइसेक्टर का ही निकाला था ना, हाँ ठीक है? एंगल बाइसेक्टर का ही हाँ निकाला हमने लाइन, इस लाइन का इक्वेशन ये है, ठीक है? ओके, हाँ लेट अस स्टॉप फॉर टुडे. सर्कल्स एंड लाइंस हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है? ऐसे मिस्टेक्स होंगे, ठीक है? प्रैक्टिस करना पड़ेगा, होंगे मिस्टेक्स. अगर मैं मुझसे क्यों हो रहा है मिस्टेक्स? बिकॉज गलती हो जाती है, ठीक है? अब गलती सुधारनी भी आनी चाहिए ना हमको, है कि नहीं? सो फॉर दैट वी नीड टू प्रैक्टिस, काफी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक है? सो टुमारो मॉर्निंग देयर विल बी अ सेशन फॉर mostly circular permutations and your linear programming. Okay, yeah, I'm stopping the recording now. Just 1 minute.